കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കർത്താവ് ഇപ്പം പണ്ട് നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഒരു പാഠം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എനിക്ക് കാച്ചിയ പാൽ തരും. ഇപ്പം ആ പാടൊന്നുമില്ല, 55 കൊല്ലം നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ്. അമ്മ എനിക്ക് കാച്ചിയ പാൽ തരും. പാൽ കുടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ കരയും. എന്തിനാണ് അമ്മ കരയണത്? ഞാൻ അച്ഛനോളം വലുതാവണം. അതാണ് സിമ്പിൾ. ആ സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ആധ്യാത്മിക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അത് തന്നെ ഈശോ പറഞ്ഞത്, ബി പെർഫെക്റ്റ് ആസ് യുവർ ഹെവൻലി ഫാദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മളെല്ലാം അച്ഛനോളം വലുതാകണമെന്നാണ് ഈശോയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പം 5:49-48 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതല്ലേ ഈശോ പറയണത്. അതായത് നമ്മൾ വളരണമെന്നാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അച്ഛനോളം വലുതാവണം. അപ്പം അതായത് ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ പണ്ട് ഈ പത്രോസ് ഒന്ന് വെട്ടി സഹായിച്ചില്ലേ, ആ വചനം ഞാൻ മറന്നുപോയി. ചിലപ്പോൾ ഡെസ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടുമായിരിക്കും. അതായത് പത്രോസ് കർത്താവിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാന ആചാര്യൻ്റെ ഭിടലേക്ക് വെട്ടിയതാ. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ചെവിയാണ് അറ്റുപോയത്. അപ്പോഴീശോ പറയുന്നൊരു വാക്കെന്താ പറയണത്? നീ വെട്ടി സഹായിക്കണ്ട, എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടതല്ലയോ? അതാണ് അതേ വചനം കിട്ടും. അതായത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 18:11 അതാണ്. അതായത് എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. അച്ഛൻ പറയണമെന്നൊന്നും പറയണില്ല. ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഓർത്ത് വന്ന ആളല്ല. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവനവന് ഉള്ളത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയവേ, അവനവൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ അവനവൻ ചുമക്കണമെന്ന് പറയണില്ലേ? എന്തിനാണെന്നറിയാം? പെടലി ഒടിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പറയണത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവനവൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ അവനവൻ ചുമക്കണം. എന്തിനാണ് ചുമക്കണത്? നമ്മുടെ പെടലി ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിലേക്ക് നീരി വീഴാനല്ല. അങ്ങനെ ചുമക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബലം കിട്ടും, ആത്മബലം. നമ്മൾ ഈ ആത്മബലം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവൊക്കെ മൊത്തമായും ചിലരെയും ചോദിക്കട്ടെ. ആത്മബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അതായത് നമ്മളുടെ ഭാരങ്ങൾ പൗലോസ് പറയണ പോലെ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആത്മബലം ലഭിക്കണത്. അതാണ് ഈ പൗലോസ് പറയുമ്പോഴേ, അതായത് ഇപ്പം റോമ 5:5 വായിക്കണില്ലേ? കഷ്ടത സഹനശീലം, സഹനശീലം ആത്മധൈര്യം. അത് തന്നെ ആത്മബലം. അപ്പം ഈ ആത്മബലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഷ്ടത വേണം. റോമ 5:5 അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടത വേണം. കഷ്ടത സഹനശീലം ആത്മധൈര്യം. അപ്പം ഈ ആത്മധൈര്യം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കണത്? കഷ്ടതയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കണത്. അപ്പം കഷ്ടത നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അതിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കണത് എന്താണ്? കഷ്ടത സഹനശീലവും ഉണ്ടാകണം. സഹനശീലം ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയും നമുക്ക് നൽകുന്നു. പ്രത്യാശ നമ്മളെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമെന്തെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മബലത്തിനാണ് നമ്മുടെ സഹനം, നമ്മുടെ ഭാരം നമ്മൾ തന്നെ ചുമക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് സഹായത്തിന് വിളിക്കാനും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന കൈയേൽപ്പിക്കാനും പറ്റുമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത്. അല്ല, എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സഭ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. കാര്യം ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള
60% പെൺപിള്ളേർക്കും ആൺപിള്ളേർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. സത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല. ഒരു 40% വരെ ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ ചിലർ അപാര അഭിഷേകമുള്ളവരുണ്ടാകും. ഈ 60% പേര് എന്നാ ചെയ്യണത്? അവർക്ക് ജീവിത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാൻ പാടാത്തത് കൊണ്ടും അതിന് സമയം ചെലവഴിക്കാനില്ലാത്തത്, അവർക്ക് അതിനുള്ള ശീലമില്ല. ഇത് കാര്യം എന്നറിയാം, ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയണതേ ഒരു ശീലമാണ്, ശരിക്കും ശീലമാണേ. അപ്പം ശീലം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശീലം ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാബിറ്റ്, ശീലം എന്താണത്? ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ. അതൊരു കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ശീലമാകത്തില്ല, പല പ്രാവശ്യം ശീലമാകണം. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ശീലമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചിലപ്പോൾ മാസം ഒരേ പ്രശ്നം ഇങ്ങോട്ട് തരും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ല, പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തവന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ല, അവർ തലയിലിട്ട് നടക്കത്തില്ലേ, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണം, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഡയലോഗ് ആച്ചിട്ടൊരു കഥയുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ അതാണ്. അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രാത്രി ആയാലും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ കടലിൽ വിട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള മാതൃക അതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ 18:11 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിച്ച പോലെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ആഹാരം മറ്റുള്ളവർ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതരുത്. അതാണ് 18:11. ഞാൻ കുടിക്കേണ്ട പാനപാത്രം, പിതാവിലേക്ക് നൽകുന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടതല്ലയോ? അപ്പം പാനപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സഹനമാണെന്ന് ഉറപ്പ്. പാനപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ, അതായത് സഹനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ 2 രീതി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒന്ന്, ആ സഹനം ചില സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സഹിച്ച് മാറേണ്ടതുണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ അപ്പൻ മരിക്കുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചില സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ട് പിറ്റേ ആഴ്ച അപ്പം മരിച്ചു. അപ്പം അതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ സെമിനാരിൽ 2.5 മാസമാണ് കരഞ്ഞത്. ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൻ ഉയർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അപ്പൻ മാറിയപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ വന്നായിരുന്നു. അയാൾ ഇന്നും എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അമ്മ. കാര്യം അപ്പം മരിക്കണ ദിവസം 10 മണി തൊട്ട് അപ്പം 3 മണി വരെ അമ്മ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് 23 ദിവസം മിണ്ടാതെ കിടന്ന അപ്പനാണ് അവസാനം അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം. ആ അമ്മ നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരും. ഇവിടം വരെ വന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ആബ്സൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല മക്കളെ, ഒരിക്കലും. ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരവും ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലാസ്ഫമി ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈശോ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന്. ഈശോ ഒരു കുറവ് ഇറച്ചിയായി ബോധമണ്ഡലം മങ്ങണ സമയത്ത് നിവർത്തിയില്ലാണ്ട് പറഞ്ഞേച്ചും വേദനയുടെ തീവ്രതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു, ഐ കം ഓൺ മൈ സ്പിരിറ്റ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതി അതാണ്. ചില സമയത്ത് വേദന സഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ശ്വാസത്തിൽ നീ പറയണം, കർത്താവേ സോറി, സഹിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, നീയും പറഞ്ഞില്ലേ. പറഞ്ഞു, ഐ കം ഓൺ മൈ സ്പിരിറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മനസ്സ് അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് സാധനം. ഇപ്പം പറയാൻ പറയരുതെന്ന് ഞാൻ ശഠിക്കുകയല്ല, പറഞ്ഞു പോകും. മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേദന കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായാലും പറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ പറഞ്ഞാലും ബോധത്തിൽ അറിയണം. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാണ്, പക്ഷേ ശരീരം ബലഹീനമാണെന്ന് ഈശോ പറയുന്നില്ലേ. അവർ ശരീരം ബലഹീനമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തെ, ചിലപ്പോൾ കർത്താവേ നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും, പരിഭവപ്പെടും, വേദനപ്പെടും. പക്ഷെ എന്നാൽ എൻ്റെ മക്കളെ ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ കയറി ജാമ്യം എടുത്തേക്കണം. എന്താണ്?
ഐ കമണ്ട് മൈ സ്പിരിറ്റ്, ഞാൻ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. എന്താ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല, ഒരു വേദനയും ശാശ്വതമല്ല, ഒരു പ്രശ്നവും ശാശ്വതമല്ല. മിശിഹ ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് മഹത്വത്തിലേക്ക് കരയേറേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സഹനവും ആവശ്യമായിരുന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഉള്ളത്. എന്തിനാണ്? മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. आराधना आराधना। मेरा नाम वंदना है, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करती हूँ। मैं 2023-17 10 तारीख को 10वें महीने में यहाँ पर पहली बार उडंबड़ी के लिए आई थी। केरला में आए हुए मुझे लगभग 24 साल हो चुका है, लेकिन मैं यहीं काम कर रही थी, केरला में ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही हूँ। इस बीच में मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए नौकरी के लिए तलाश में एक एजेंसी में संपर्क में थी, और उस समय एजेंसी ने मुझे टूरिज़्म इंडस्ट्री में मतलब फ़्लाइट टिकटिंग के लिए नौकरी घर से जो कर सकें उसके लिए मुझे ऑफ़र दिया था। अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र लेटर वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो सही होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो फ्रॉड था। लेकिन जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो फ्रॉड था, तब तक ये मेरे हाथ से कम 38 लाख रुपीस उसमें लॉस हो चुका था, क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे टिकटिंग बुक करने के लिए बोलते थे और मैं बुक करते जाती थी, लेकिन मर्चेंट के टिकटिंग में इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ा कि जो मेरे से पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने जितना भी सोना था और बाकी जितने भी थे और अपने दोस्तों से मैंने कर्ज़ लेकर के उसको टिकटिंग को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन बाद में उन लोगों ने फिर लास्ट में मुझे 10 लाख का डिमांड किया। तब मुझे पता चला कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन मैंने अपने हस्बैंड से भी थोड़ा पैसा कर्ज़ लिया था। फिर बाद में जब मैंने पीछे की तरफ अपने जीवन में देखा तो मुझे पता चला कि हम लोग ऑलरेडी 38 लाख रुपीज़ लोन पे आ चुके हैं। तो फिर मैंने बोला कि अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अब जो भी फर्दर होगा वो आप एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप कर लीजिए करके। और मैंने फिर उस एजेंसी को मैंने बार बार ट्राई किया, मैंने उनको कन्विंस करने के लिए देखा, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं हो रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग फ्रॉड है। उसके बाद वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाने लगे, और बाद में मुझे पता चला कि सही तरीके से मैं एक स्कैम में फंस गई थी, और जितना पैसा मैंने लॉस किया वो मेरे जीवन में अब कभी नहीं मिलेगा। लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि अब ज़िंदगी जीने से बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब 20 साल की थी तब मैं केरला आई थी, और आज जब मैं 45 साल की हो चुकी हूँ, तो अब इतने उम्र में मैंने जितने भी पैसे सेव किए थे और मेरे पति का और जितना भी पैसा हम लोगों ने सेव किया था वो पूरा पैसा हम लोग लॉस कर चुके थे। तो फिर मुझे डर ये लगा कि मैं घर में किसी को बताई नहीं थी, और इवन मेरे पति को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। तो मैं जैसे नौकरी के लिए जाती थी एज़ यूजुअल मैं घर से निकली, और उसके बाद मैं सीधा जैसे ही बस स्टॉप में आई, तो मेरे सामने में एक ट्रिवेंड्रम के लिए जाने के लिए बस आई, और मैंने उसी बस में मैं चढ़ करके कृपासनम आई। और उस दिन जब मैं कृपासनम आई तो मुझे यहाँ उडंबड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि इसके बारे में मेरे कोलीग एंथनी ने मुझे बताया था कि मैडम आप उडंबड़ी लीजिए, उडंबड़ी लेने से आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी करके। तो मैं उसके बारे में सुनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उडंबड़ी क्या होता है और कहाँ लेना है और कैसे लेना है और उसको कैसे निभाना है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आई तो वहाँ पर मैं जब बैठी उडंबड़ी के लिए, तो सबने मुझे बहुत इजी तरीके से बताया कि कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप किस काउंटर पे जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है। हालांकि मेरे मलयालम उतना क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग समझ आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने उडंबड़ी के लिए लेने के लिए देखा तो लोगों ने बोला कि अगली क्लास 2 बजे की है। तो फिर सुबह के जो लोग गए हुए थे ऊपर, वो लोग अभी तक नीचे नहीं पहुँचे हैं करके। तो फिर मैं वापस जाने के खड़ी हुई, तो मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी वो हिंदू थी। उसने बोला कि मेरे फ्रेंड्स सुबह गए हैं, लेकिन दीदी आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप उडंबड़ी लेके ही जाइए करके। तो फिर मेरे को भी लगा कि कोई शक्ति जो मुझे यहाँ पर रोक रही है दोबारा। मैं वहाँ फिर बैठ गई, 2 बजे के क्लास को मैंने अटेंड किया, उडंबड़ी लिया। सारे प्रोसीजर्स के बाद में मैं जब यहाँ पर टोकन लेने के लिए आई तो सिस्टर ने मुझे बोला कि तुम क्यों रो रही हो। मैं सबसे पीछे खड़ी थी। उन्होंने मुझे सामने की तरफ खींच के लाया और बोला कि आप इसमें से एक कॉइन लीजिए करके। मैंने कॉइन लिया तो उसमें सबसे पहले दिन मुझे मिला था यहाँ का मोमबत्ती कैंडल,
और मैं कैंडल लेकर के यहाँ तक आई। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना टाइम देखा तो 5 ही बजा था। 5 बजे मैं यहाँ पर से प्रार्थना कर करके वापस बाहर बस स्टॉप तक ही पहुँची। तो मैंने माता से यही प्रार्थना की थी कि मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं कहाँ आई हूँ, और मैं सिर्फ मरने के लिए वापस घर से निकली थी, और आपने मुझे अगर मुझे वापस मेरा ज़िंदगी दिया है तो फिर मुझे ज़िंदगी जीने के लिए सिखाना भी और मेरी हिम्मत को बढ़ाना। इसलिए जब मैं बस के वहाँ पर पहुँची तो मैंने यही प्रार्थना की थी कि यहाँ तक कि एर्नाकुलम तक जाने के लिए मेरे साथ कोई रहे। और आप लोग भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करोगे, जो लड़कियां 10 बजे यहाँ पर उडंबड़ी लेकर के वेट कर रही थी, वो लड़कियां सारी की सारी एडपल्ली से थी, और मेरा स्टॉप कड़माशेरी है एर्नाकुलम में। वो सारी की सारी वहाँ पर डर करके चारों लड़कियां खड़ी थी, और उन लोगों ने बोला दीदी आप अभी तक गई नहीं थी? तो मैंने बोली कि नहीं। तो वो लोग बोले कि दीदी हम लोगों को डर लग रहा है क्योंकि हम लोग रात हो चुका है और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो मैंने बोला कि तुम लोग को कहाँ जाना है? तो वो लोग बोले एडपल्ली। यहाँ से वहाँ तक के माधव मेरे साथ आई, वो चारों लड़कियों के साथ मैं एडपल्ली पहुँची, और जितने टाइम पे मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर पे पहुँचती, मैं उसी समय पे करेक्ट 8 बजे मैंने घड़ी में देखा जब मैं घर पहुँची। तो घर में किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ गई थी। उसके बाद में मुझे इसके बारे में नहीं पता था, उडंबड़ी के बारे में, तो मैं उतना प्रार्थना वगैरह नहीं करती थी। पेपर लेके गई थी, लेकिन मैंने अपने कोलीग से पूछा कि पेपर को कहाँ देना है, तो वो उसने बोला कि मैडम आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चर्च में रख दीजिएगा। मैंने चर्च में रख दिया, लेकिन बाद में मैं जब चर्च में गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत से लोग उडंबड़ी पत्रम वहाँ पर रख करके जा रहे हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं उडंबड़ी पत्रम रखूँगी नहीं। पहले मुझे बहुत शेम लगता था कि पत्रम दूसरों को देने में, इवन मुझे ये पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि ये पत्रम मैं सबको दूँगी। और मैं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, बस स्टॉप्स में और कॉलोनीज़ में, घर में सबको पेपर देना चालू की। हर महीने 14 तारीख मैं यहाँ आती थी कृपासनम में और पत्रम लेके जाती थी। पहले वाले उडंबड़ी में मैंने अपने सारे चीज़ें अपने लिए लिखी थी, लेकिन ध्यानम जुड़ने के बाद में मंगलवार का जो ध्यान होता है फादर का, जोसेफ का, उस ध्यान को जुड़ने के बाद मैं आज तक के 1.5 साल से उडंबड़ी में हूँ, और हर 3 महीने के बाद मैं अपनी उडंबड़ी को रिन्यूएट करती हूँ। हर महीने 14 तारीख को मैं यहाँ चर्च में आती हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने लिए कोई भी नियोग नहीं लिखा, क्योंकि अच्छा ने कहा था कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैंने दूसरों के लिए जो कुछ लिखा है हर महीने वो मुझे माता आशीर्वाद के तरीके से दे देती थी। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में जो कमियां थी वो माता मुझे पूरा करके दे रही थी। सबसे पहले मेरा साक्ष्य ये है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का उतना महत्व नहीं रहता है। मतलब आप गाड़ी चला सकते हैं, 6 साल का बच्चा भी वहाँ रोड में गाड़ी चलाता है, कोई लाइसेंस चेक नहीं करता है। लेकिन जब मैं MG रोड में 10 साल से गाड़ी चला रही थी 2 व्हीलर, सो उस अहंकार में थी कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने अप्लाई किया, लेकिन मैं बहुत बुरी तरीके से पहले ही राउंड में फेल हो गई। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे गियर गाड़ी चलाना नहीं आता है। मेरे ड्राइविंग स्कूल के मास्टर ने कहा कि दीदी आप एक बार और टेस्ट दीजिए। मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इतने लोग खड़े थे, मेरी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हुई है, अब मैं दोबारा टेस्ट नहीं दूंगी। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने दूसरी बार टेस्ट के लिए मैं गई तो मैं गाड़ी जैसे ही स्टार्ट की तो मैंने उडंबड़ी पहले से ही पूरे ग्राउंड में फेंक दिया था। उसके बाद मैंने उडंबड़ी का आशीर्वाद अपने हाथ में रखा, उडंबड़ी तेलम मैंने अपने माथे पे लगाया। उसके बाद मैंने माता से प्रार्थना किया कि अगर इस बार मैं फ़ेल हो जाऊंगी तो मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी। हालांकि मैंने ये अपने नियोग में नहीं लिखा है, लेकिन ये अगर ड्राइविंग लाइसेंस मुझे नहीं मिलेगा तो मैं गाड़ी शायद नहीं चला पाऊँ और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। आप कोई भी भरोसा नहीं करोगे, जब मैं टेस्ट के लिए गाड़ी पे बैठी तो पहली बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी ऑफ हो गया था। उसके बाद भी पुलिस वाले ने बोला कि इसको एक चांस और दे दो, जबकि किसी को दिया नहीं जाता है। उसके बाद मैं जब दोबारा गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने माधव को बोला ये गाड़ी मैंने आज तक चलाई नहीं है, गियर कैसे डाला जाता है मुझे मालूम नहीं है। अब मैं आप ही के ऊपर, आपके भरोसे मैं अपनी आँखों को बंद किया और मैंने सीधा गाड़ी स्टार्ट की। आप लोग कोई भी विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने 8 लेकर के मैं बाहर आई तब मैं अपनी आँखें खोली। जब मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मैंने आंखें खोली, तब मैंने देखा कि मैं 8 ले चुकी थी। ऐसे ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पास हो गया था। और मेरे सर ने भी और मेरे हस्बैंड ने आकर के मुझे पूछा कि तू क्या कर रही थी, पूरा आंख बंद करके तू 8 लगा रही थी और इतने देर से तू प्रैक्टिस कर रही थी तो तू 8 ले नहीं पा रही थी करके। वो मेरे पहला माता से मुझे अनुग्रह मिला था। दूसरा अनुग्रह मेरे हस्बैंड का
10 साल से, मेरे हस्बैंड 11 साल से यूएस में है, वो शिप में है, वो शेफ़ है। पिछली बार जब वो आए थे तो इस कर्ज़ के टाइम पे उनका वीज़ा कैंसिल हो गया, मतलब वीज़ा ख़त्म हो चुका था। उनका हर 5 साल का वीज़ा लगता है। तो उन्होंने बोला, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी हमारा वीज़ा लग नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था, उनका रिन्यूएट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने माता से ये बोला कि माता, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हम लोग की इतने परेशानी के समय में अगर उनका वीज़ा रिन्यूएट नहीं होगा तो हमारे हाथ में इतना पैसा नहीं होगा कि हम लोग अपने घर का खर्चा भी उठा सकें। तो आप मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे हस्बैंड के विश्वास को बढ़ाने के लिए अप्रैल 15 तारीख 2024 से पहले मेरे हस्बैंड का वीज़ा आप दीजिएगा करके। मैंने पहली बार डेट रख करके प्रार्थना की थी। मैंने नियोग में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने मन में प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय मेरा उड़म्बड़ी पुदकान रिन्यूएट करने का टाइम नहीं हुआ था। मैंने प्रार्थना की, लेकिन वीज़ा लेट मिला था, 21 तारीख को मिला, इसलिए मेरे हस्बैंड उस टिकट में नहीं जा पाए थे यूएस में। लेकिन जिस दिन वीज़ा कोरियर से आया तब हम लोग को पता चला कि कोरियर कंपनी वालों को डिले हो गया था, लेकिन वीज़ा उसी दिन 15 तारीख को रात के अप्रैल 2024 में ही वीज़ा सील हुआ था, क्योंकि उसमें सील का डेट था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए, मैंने आपको बोला था कि 15 तारीख को आपका वीज़ा मिल जाएगा करके, आपका 15 तारीख को ही मिला। उसके बाद टिकट नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहला टिकट कैंसिल हो चुका था। हम लोग बार बार मेल भेज रहे थे, मेल पे मेल भेज रहे थे, लेकिन 2 महीना हो गया, कोई आंसर मिल नहीं रहा था। हस्बैंड को भी टेंशन हो गया था। उसके बाद मैंने उनको भी ले करके हम लोग 3 बार यहाँ आए, और जिस दिन यहाँ आ करके प्रार्थना करके गए, मैं मन में यही बोल रही थी कि आज मुझे आप आंसर देना ज़रूर करके। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तब तक के उनके शेफ़ ने वहाँ से फ़ोन किया यूएस से, और कहा कि जिस मेल आईडी में तुम मेल भेज रहे हो वो गलत मेल आईडी थी, तुम एक काम करो, इस मेल आईडी में भेजो और मैं प्रोसीड करवाता हूँ। उसी दिन मेरे हस्बैंड का लेटर आया और 9 तारीख को उनकी टिकट आई। मतलब सिर्फ 4 दिन का गैप था जिसमें मेरे हस्बैंड को यूएस में वापस ज्वाइन करना हो पाया। ज्वाइन करने के बाद में उनके पीठ के पीछे में एक छोटा सा लम्स था, जो कि 3 साल पहले आया था। लेकिन यूएस में रूल है कि अगर आप शिप में बता दोगे किसी लम्स के बारे में, तो वो लोग हमको वापस रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। फिर हमारा फर्दर हम लोग को दोबारा शिप में उतरना हो पाए नहीं हो पाए उसका भरोसा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रार्थना करती थी। वो भी मैंने अपने योग में नहीं लिखा था। जैसे मेरे हस्बैंड आए, हम लोगों ने उसका ऑपरेशन कराया, बायोप्सी का रिपोर्ट आया, वो नेगेटिव था। उसी तरीके से मेरा भी यूट्रस में एक छोटा सा मोड़ा था, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद बायोप्सी का रिपोर्ट आया। और उसके बाद मैंने माधव को यही कहा था कि माधव, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके सहारे के लिए कोई नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ ऑपरेशन के लिए आने के लिए या मेरा इलाज कराने के लिए मेरे साथ कोई नहीं रहता है, तो सिर्फ आप ही हो जो मेरे इस घड़ी में साथ में रुक सकती हो। उस दिन रात के मैंने अपनी माँ को छत्तीसगढ़ में कॉल किया, तो मेरी माँ ने बोला कि मैं मौसी को बोलती हूँ। और जैसे ही मेरी मौसी को इन्फॉर्म किया, मेरी मौसी ने बोला कि तू कुछ मत देख, तू सीधा त्रिशूल वापस आ जा, हम लोग यहाँ तेरा चेकअप करवाएंगे। और जुबली मिशन में मेरे को दूसरे दिन एडमिट किया गया। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ। 9 तारीख नवंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। 10 दिन के बाद मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया जो कि नेगेटिव था। उसके बाद में मेरे को डिले हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे को बाकी नियोग भी पूरा होना था। लास्ट में जिस चीज़ के लिए मैं आई थी, मैंने आज तक माता के अपने उड़म्बड़ी में कभी नहीं लिखा था कि मेरे को 38 लाख रुपीस का जो कर्ज़ है वो आप मेरे को छुड़ा करके दो। लेकिन मैंने खुद ही रियलाइज़ नहीं किया, ये 1.5 साल के सफ़र में पूरा कर्ज़ा माता ने अपने ईशो से मांग करके मेरा पूरा कर्ज़ा चुकता कर दिया। ऑलमोस्ट मैं अभी एक रिलीफ पॉइंट में आ चुकी हूँ कि जहाँ मैं आगे के बारे में सोच सकती हूँ। इतना था कि जो मुझे माधव ने ईशो से, देव कुमारन से ले कर के दिया, मैं उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा मरते तक मेरा और मेरा परिवार उड़म्बड़ी के विश्वास में जिए। बाइबल सही तरीके से कहा जाए तो मुझे मलयालम नहीं आता था, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश मलयालम बाइबल के हिंदी और इंग्लिश बाइबल मैंने ख़रीदा, और मैं हर दिन जितना हो सके मैं बाइबल रीड करती हूँ। ऑफिस में बैठ कर के मैं स्पीकर में रख कर के हर दिन का ध्यान फादर जोसेफ का ध्यान जुड़ती हूँ। और मैं ड्यूटी अपने हिसाब से 12 बजे से लेकर के रात तक ही करती थी। 9 बजे जैसे ही मैं ड्यूटी से ख़त्म करती हूँ, 10 बजे तक मैं हर दिन
बिना गैप के मैं चर्च जाती हूँ। वहाँ जपमाला सुबह एक और शाम के एक, हमेशा जपमाला मैं एक भी दिन मिस आउट किए बिना प्रार्थना करती हूँ। उडंबड़ी प्रार्थना मैंने कभी नहीं छोड़ा। और हमारे पास में ही एक कोतेलिंगम करके ऑर्फनेज है, जहाँ पर मैं जितना हो सके मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। उनको जो पसंद है वो एक दिन का खाना जब भी होता है, मतलब बर्थडे होता है, जो भी होता है, और दीपावली, दशहरा, हमारे वहाँ के जो त्यौहार होते हैं उस समय में से जितना बन सकता है मैं फूड आइटम्स खरीद करके उन बच्चों को ले जा करके देती हूँ। अपने घर जैसा ही है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ। तो वहाँ के सिस्टर लोग और वहाँ के जो बच्चे हैं वो मेरे अपने घर जैसे ही हैं। और अपने घर का नॉर्थ इंडियन खाना बना करके मैं बस स्टॉप में और लोगों को देती हूँ जिनको उनकी ज़रूरत है।